Good morning, my dear students. Have a nice day. Standard 3rd, subject English. Myself, Miss Alima Sheikh, your English teacher. Students, as you know, in the previous lecture I had explained you chapter number 5, the story of Sindbad the sailor. Right, students? In that I had explained you the page number 6. So students, I request to everyone to open your English Balbharati textbook. Students, in that open the page number 6. Students, again I am repeating, already I had explained you the page number 6 in the previous lecture, and today I am going to explain you the next page, means the page number 7. right? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पेज नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर. आज हम इसी कहानी का अगला भाग देखेंगे. स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट रिकैप ऑफ पेज नंबर 6 so that you can understand the whole story properly. Students, next page start करने से पहले, means पेज नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेज नंबर 6 का एक छोटा सा रिकैप दूंगी, जिससे आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर एज यू नो, this is the chapter number 5, the story of Sindbad the sailor. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages. Students, voyages means already I had explained you in the previous lecture. जल यात्रा. ये voyages का मतलब क्या होता है? जल यात्रा. A long journey traveled by sea. Voyages का मतलब है a long journey traveled by सी, और हिंदी में हम उसे कहेंगे जल यात्रा. अपीयर इन अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज मीन्स इफ वी सी द सिंदबाद स्टोरीज, देयर आर सो मेनी collection of stories are there, and the book name is 1001 Nights, and the next book is the Arabian Nights. In these books we can see many of the adventures of Sindbad. Students, Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. Students, Sindbad was honest, generous and brave man. Honest means imandar. Generous we can say bountiful, right? And brave means bahadur. So students, he never lost heart and hope in danger situation. वो कभी हार ही नहीं मानता था. कितने भी डेंजर से डेंजर सिचुएशन में भी वो बाहर निकलता था और सेफली घर पे पहुंच जाता था. ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर एंड रिटर्न होम सेफली. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द वेरी फर्स्ट वॉयज. हम सबसे पहली कहानी देखने वाले हैं जो जल यात्रा पर है. सिंदबाद सेट सेल्स विद अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स. स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स मीन्स, एज आई had explained you in the previous lecture, merchant means dealer, trader, and Hindi we called as Vyapari. So here Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. Sindbad बाकी सब व्यापारियों के साथ बड़े से जहाज में था. From time to time they stopped at a various spot. Port means a place where people or merchandise can enter. There they sold their merchandise and bought a new things to trade. Students, वो लोग हर एक जगह पे जाके रुकते थे, राइट? और वहाँ पर वो क्या करते थे? अपना सामान बेचते थे, अदरवाइज एक्सचेंज करते थे.
Right, students? Now, the second paragraph. One day when their ship was sailing smoothly across the sea. एक दिन की बात है जब जहाज उनका एकदम आराम से समुद्र के बीच में सेल हो रहा था. सेलिंग मीन्स व्हाट? तैर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना वैसे. They spotted a small island at a distance. Now what happened? They had seen a small island. Students, island means what? A land surrounded by water. आइलैंड क्या होता है? एक ज़मीन है जो उसके आजू बाजू पूरा पानी ही है और बीच में वो ज़मीन है, उसे हम कहते हैं आइलैंड. तो उन्होंने आइलैंड देखा एक दूर से, एट ए डिस्टेंस. दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मैनी डेज एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड. सो फ्रॉम मैनी डेज दे वर जस्ट ऑन द शिप ओनली. यस, मैनी डेज दे हैड नॉट सीन द लैंड ओनली. बहुत दिन से वो लोग ने ज़मीन ही नहीं देखा, वो लोग सिर्फ समुद्र के अंदर ही थे, राइट, वो जहाज में. तो उन्हें एक डिस्टेंस में एक आइलैंड दिखा, राइट, और वो लोग सरप्राइज भी हो गए और खुश भी हो गए वो आइलैंड को देख के. नाउ दे सेल क्लोज टू द आइलैंड. वो लोग और नज़दीक आइलैंड के पास पहुंच गए. द कैप्टन ऑफ द शिप्स अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक. सो द शिप कैप्टन, शिप में जो कैप्टन था उसने अलाउ किया. अलाउ मतलब परमिशन दिया कि हाँ तुम सब जा सकते हो उस आइलैंड पे और वहाँ पे जाके तुम लोग पिकनिक बना सकते हो. पिकनिक मीन्स एज वी आर इंजॉइंग, राइट, हम लोग इंजॉय करते हैं, राइट, वैसे. तो वहाँ पे जाके तुम लोग इंजॉय कर सकते हो. एवरीवन वाज एक्साइटेड. सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे. एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी. सो हियर एवरीवन मीन्स हु स्टूडेंट्स? यस, द मर्चेंट्स, व्यापारी. जितने व्यापारी थे शिप में वो सब लोग बहुत खुश हो गए. नाउ ऑन द आइलैंड दे स्ट्रोल्ड अराउंड, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires to cook meals. जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे ही आइलैंड में सारे पीपल्स लोग उतरे तो वहाँ पर क्या करने लगे? स्ट्रोल्ड मीन्स थोड़े लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे, थोड़े जन गाना गाने लगे, sang a song, थोड़े जन डांस करने लगे, राइट. और सम ऑफ द पीपल्स बिगैन टू वॉश देयर क्लोथ्स. और थोड़े लोग क्या करने लगे? कपड़ा अपना वॉश करने लगे. बिकॉज दे हैड नॉट सीन मैनी डेज, दे हैड नॉट सीन वॉट? लैंड. एज आई टोल्ड यू, बहुत दिन से वो लोग ने लैंड नहीं देखा था, राइट. वो लोग समुंदर में ही शिप के अंदर थे. तो जब वो लोग ने लैंड देखा तो बहुत लोग वहाँ पर खुश हुए. कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई जस्ट ऐसे यहाँ वहाँ घूम रहा है, राइट. और बहुत लोग कपड़ा धोने, वॉश करने चले गए. और सम लिट्स फायर्स टू कुक मील्स. और थोड़े लोग ने क्या किया? आग जलाया खाना बनाने के लिए. मील्स मीन्स व्हाट? फूड. सो स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टूड? नाउ द 2 paragraphs. Okay, now move to the last one. Soon a breeze sprang up. The fires began to blaze. Suddenly the land began to shake and move. With a shock, the picnic party realized that the island was not an island at all. They were on a big, huge sea monster, right? They were on the huge मतलब बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर था. उसके बैक पे वो लोग थे. बैक मीन्स पीठ के साइड पे. वो लोग को ये रियलाइज हो गया कि ये जो आइलैंड है वो लैंड नहीं है, ये जो ज़मीन है वो ज़मीन नहीं है, वो क्या है एक्चुअली में? एक सी मॉन्स्टर का बैक है. बैक मतलब जो बैक का पीछे का हिस्सा होता है, पीठ का हिस्सा हम जिसे कहते हैं. तो वो समुंदर में जो बहुत बड़ा राक्षस है वो उसका पीठ है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं. ऐसा सबको रियलाइज्ड हो गया, पता चल गया कि ये पिकनिक नहीं है, हम जो लैंड पर है वो कहाँ पर है? एक बड़े से राक्षस के पीठ पे है. लाइक दैट दे रियलाइज्ड, राइट. स्टूडेंट्स, आग जो जल रही थी जिसमें खाना बना रहे थे वो आग बहुत ज़ोर ज़ोर से जलने लगी. और जो लैंड था जिसको वो लोग लैंड समझ रहे थे वो हिलने लगी, राइट. तो सबको रियलाइज हुआ कि ये ज़मीन नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है? ये सी मॉन्स्टर का पीठ है, बैक है, राइट. एंड इट हैड मूव्ड, स्टार्टेड मूविंग मीन्स व्हाट? वो थोड़ा सा हिलने लगा. वो जो ज़मीन थी वो हिलने लगी. एक्चुअली में वो ज़मीन नहीं था, बट जो व्यापारी थे, जो वहाँ के पीपल्स लोग थे, कैप्टन्स थे, वो लोग को लगा था कि वो एक लैंड है, वो एक ज़मीन है, बट एक्चुअली में वो ज़मीन नहीं था.
People begins to scream. They left their pots and pans, their clothes, washed and unwashed, and rushed back to the ship. बहुत जो पीपल्स लोग थे वो लोग बहुत एकदम सरप्राइज हो गए कि क्या हो रहा है, और वो लोग जस्ट यहाँ वहाँ भागने लगे, राइट. और वो लोग ने अपना सामान, दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पेन्स, देयर क्लोथ्स, सब चीज़ वो लोग ने वहीं पर ही छोड़ दिया. पॉट्स मीन्स जो मटका होता है, राइट. पैन्स मीन्स जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, और बहुत सारे कपड़े जो धुले हुए भी थे और जो धुल के रखे थे, दोनों कपड़े वो लोग ने जस्ट वहीं पर ही छोड़ दिया. एंड दे वेंट बैक टू द शिप. वो लोग शिप के पास चले गए. द कैप्टन्स ऑर्डर्स हिज मैन टू सेट सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर. जैसे कि कैप्टन ने इमीडिएटली सारे व्यापारी से वहाँ पर कहा और ऑर्डर दिया कि सब लोग शिप में जाओ और शिप्स चालू कर दो कि हम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाए, ये सी मॉन्स्टर से हम लोग दूर चले जाए. ऐसे किसने ऑर्डर दिया? कैप्टन ने ऑर्डर दिया. सो स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टूड? अ शॉर्ट रिकैप ऑफ पेज नंबर 6. ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? सो हियर so students, can you see the page number 7? So everyone now open the page number 7. Okay, so here the sea monster plunged deep into the sea. Means the sea monster, जो समुद्र का राक्षस था, plunged means उसने डुबकी लगाई, deep into the sea, समुद्र के अंदर. जो सी का जो राक्षस था, समुद्र का जो राक्षस था, उसने डुबकी लगाई. कहाँ डुबकी लगाई? समुद्र के अंदर. So students, as I told you, plunged means deep, right, into the sea. Means it's called jump or dive quickly and energetically. Plunged means jump or dive quickly or energetically. तो जो समुद्र का राक्षस था उसने डुबकी लगाई तुरंत, राइट. कहाँ पर? समुद्र के अंदर. ना आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड? Many of the peoples managed to climb aboard the ship. So here many of the peoples, they tried and they went back to the ship. बहुत लोग ने कोशिश किया, मैनेज किया, वो लोग चढ़ गए. कहाँ चढ़ गए? शिप के अंदर. बट मैनी शंक इनटू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड. पर बहुत लोग पीछे ही छूट गए, मीन्स समुद्र के अंदर ही छूट गए. वो लोग शिप तक पहुंच ही नहीं पाए. और वो लोग कहाँ छूट गए? जो वो लोग ने सोचा था कि वो आइलैंड है, पर पर्टिकुलरली वो आइलैंड नहीं था, वो एक समुद्र का राक्षस था, राइट. Students, as I told you, aboard means to catch ship. So here many of the people managed to climb the ship, but many of the people sunk into the sea. Right, students? Now, Sindbad alone did not run in the sea. Sindbad भी पीछे ही पानी में छूट गया, बट वो अकेला नहीं था, उसके साथ भी बहुत लोग पानी में ही छूट गए. मीन्स वो लोग शिप तक पहुंच ही नहीं पाए. बट ही कुड नॉट रीच द शिप. और जो सिंदबाद था वो शिप तक पहुंच ही नहीं पाया. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द शिप इज सो फार फार अवे फ्रॉम सिंदबाद. राइट स्टूडेंट्स? He was now at the mercy of the waves, being tossed here and there. So here students, now जैसे कि आप देख सकते हो, जो सिंदबाद है वो कहाँ पर है? समुद्र के अंदर. और उसको जो लहरें होते हैं वो उसको सिर्फ यहाँ वहाँ बहा के लेके जा रही है. राइट स्टूडेंट्स? He clung to a piece of wood and somehow he managed to keep afloat. उसने एक लकड़ी का, जो वुड का टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा, उसके ऊपर उसने जस्ट क्लाइंब किया, अपने आप को चढ़ाया, और उसी के ज़रिए वो मैनेज करते हुए फ्लोट हो रहा था. फ्लोट मीन्स फ्लोटिंग, मतलब तैरते हैं ना, वैसे वो तैर रहा था. राइट. नाउ ही स्पेंड द नाइट अलोन एट सी. और पूरा रात वो अकेला ही था उस समुंदर में.
क्योंकि शिप तो चली गई थी, एज यू नो, राइट स्टूडेंट्स. ही स्पेंड द नाइट अलोन एट सी. सो स्टूडेंट्स, now as you can see, the first passage is completed, right? Now move to the next paragraph. So here, when the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island, a real big island. जैसे कि दूसरा दिन का सुबह हुआ और सिंदबाद ने वो खुश हुआ कि उसने देखा कि वो तैरते तैरते कहाँ पर आ गया, फ्लोट होके एक आइलैंड के पास आ गया है. और वो आइलैंड एक रियल और बिग आइलैंड है. मीन्स वो ज़मीन के पास पहुँच गया और वो ओरिजिनल ज़मीन थी, लास्ट टाइम जैसा सी मॉन्स्टर टाइप नहीं था. When the next day dawned, as I told you, Sindbad was happy to see that he had floated near an island, a real big island. Can you see students island? क्या आप देख सकते हो यहाँ पर एक लैंड दिख रहा है आपको? तो सिंदबाद बहुत खुश हो गया कि वो फ्लोट होते होते कहाँ तक पहुँच गया, एक आइलैंड के पास पहुँच गया. He could see hills and woods and trees at a distance. जैसे कि सिंदबाद देख सकता था कि पहाड़ है, झाड़ है, बहुत दूर से उसको सब चीज़ें दिखाई दे रही थी. क्या दिखाई दे रहा था? Hills and woods and trees. Got it, students? Though he was extremely tired, he swam to the shore with all the strength that he could muster. जैसे कि वो पूरा रात भर वो फ्लोट ही हो रहा था पानी में, राइट? तो वो बहुत ही थक चुका था. एक्सट्रीमली टायर्ड मीन्स वो बहुत ज़्यादा थक चुका था. He swam to the shore. Shore means what? The seaside. The seaside, it's called a shore. जैसे कि समुंदर के किनारे तक वो अपनी पूरी ताकत लगा के वो वहाँ तक पहुँच गया. All the strength that he could muster means all the strength that he could muster, all the strength that he could used at that time. अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कहाँ तक अपने आप को लेकर आया? समुंदर के किनारे तक, क्योंकि वो बहुत ही थक चुका था. Exhausted and hungry, he lay on the sand for some time. जैसे कि वो समुंदर के दिख रहा है आपको किनारे, वो आकर वहाँ पर वो जस्ट लेट गया. एकदम थका हुआ था, भूखा था वो. हंग्री मीन्स उसे भूख लग रही थी, राइट? वो बहुत ही थका हुआ था और वो क्या कर रहा था? समुंदर के किनारे तक आया और वो सैंड जो रेत है वहाँ पर ही वो बैठ गया. ले मीन्स जैसे आप देख सकते हो वो सो गया वहाँ पर. ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वो वहीं पर ही लेट गया. Then again he made an effort and began to walk inland towards a shady fruit trees that he could see at a distance. Now, from the distance he can see that there are some fruit on the tree. So what he had done, he made an effort and began to walk inland towards a shady fruit tree. जैसे कि उसने फिर थोड़ी देर के बाद वो उठा और उसने देखा डिस्टेंस में, क्या देखा? उसे झाड़ दिखाई दे रहे थे, पेड़ दिखाई दे रहे थे और पेड़ में क्या थे? फ्रूट्स थे. तो उसने एफर्ट किया, मीन्स कोशिश किया और वहाँ तक वो चलकर गया जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे और ट्रीज़ में क्या था? फ्रूट्स. Then again he made an effort and began to walk inland toward the shady fruit trees that he could see at a distance. As I told you students, उसने एफर्ट किया और वो फिर से उठा और चलकर कहाँ तक गया? इनलैंड. इनलैंड मीन्स जहाँ पर ज़मीन है, मीन्स जो समुद्र के किनारे से थोड़ा सा दूर जहाँ पर ज़मीन है और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स थे. वो उसने बहुत दूर से ही देख लिया था, इसीलिए वो चलकर वहाँ तक गया. उसने एफर्ट किया. एफर्ट मीन्स कोशिश किया, हिम्मत किया और वहाँ तक वो चलकर गया. So students,
completed the 2 paragraph of page number 7. The remaining part we will continue in the next lecture. Students, the homework is you have to read the page number 6 as well as 7. This is the homework. In the next lecture, we are going to complete the story as well as I am going to give you the notes. Got it, students? So students, thank you for watching the video.